Yes, let us proceed further in this lesson, the march of mind. I think we were here on page number 11, second paragraph. Is somehow too long. Still, from examination point of view, it is very important. Reference context as well as lengthy question may be there in your paper. Therefore, we are going through very seriously and word to word. Yes, we were here. It is all in our bloodstream. All these things of inheritance are there in our culture, in our day-to-day life. The more Indian culture changes, the more it remains the same. It looks somehow contradictory, or rather you say simply contradictory statement. Changes and remains same. But you are supposed to pay more attention, and you would certainly learn. The more Indian culture changes, the more it remains same. What does it mean? It simply reflects the flexibility of Indian culture. Remind you again, it simply reflects the flexibility of Indian culture. Try to understand, the more Indian culture changes, no doubt, change takes place everywhere in every culture. Then, what is being suggested? The more remains the same. Very deep sentence. आप ऐसा समझने का प्रयास करें कि इस कल्चर में इतनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरों को आत्मसात करने की क्षमता है। ये जितना जितना परिवर्तित होती चली जाती है, जितना दूसरे कल्चर को, दूसरे ट्रेंड्स को अडॉप्ट करती जाती है, उतना ही ये सेम भी रहती है, इंटैक्ट भी रहती है। इट मीन्स radical changes are not there, although change takes place. जितना अधिक परिवर्तन, उससे भी अधिक सेम। ये ही हमारी कल्चर की सस्टेनेबिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बदलाव भी आता है और हम अपनी मूल प्रवृत्ति को भी नहीं छोड़ते हैं। नए नए इन्वेंशंस होती हैं, उनको डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट किया जाना बड़ा स्वाभाविक सा है। बट वी आर बाउंडेड with our inheritage, with our culture, with our moral values, and we are not supposed to leave them. Whatsoever type of changes may take place, it will sustain us in the future if we believe in ourselves. And these values will sustain, will remain the part and parcel of our life if we have faith, if we have belief, and it would certainly be there. Their existence shows that we are ready to continue with them.
otherwise they could not have been existed. Test, T-E-S-T, test of greatness, the page of history. अब हमारी कल्चर की ग्रेटनेस आप कैसे मापेंगे कि आपको हमारे जो पूरा सिस्टम है मनुष्य जाति के उद्भव से आज तक का, उसमें 5000 10,000 वर्ष पूर्व जो परंपराएं थी, जो संस्कृति हमारे पूर्वज रखते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है. Why? Because we have faith. हमारा उन परंपराओं में, उन बिलीफ्स में, उन ट्रेडिशंस में विश्वास है. इसी कारण वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा थे, हैं और रहेंगे. It is the intangible that gives a nation its character and its vitality. These are the things which cannot be understood by anyone easily, particularly foreigners, but they provide us a national character and power as well. The power of integrity comes from these traditions, that we remain same after going through a process of change. This is our strength. यही हमारी शक्ति का मूल कारण है. और हमारे देश की जो यूनिटी है वो इसी बात पर निर्भर करती है. They may seem unimportant or even irrelevant under the present of daily life, under the pressure of daily life. Mind it. Very simple, still very important observation by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the second president of our country, suggesting what? They may seem unimportant or even irrelevant under the pressure of daily life, because in our routine we have targets, objects before us, and we are supposed to complete them within a given time. Certainly, pressure is always there, and under that pressure, these things may appear as irrelevant, but our ethical values, that they are not as significant as we think about them. People may have this type of opinion on certain occasions, but this is not the case. Whenever required, they play their part in a very effective manner. That is their importance. In day-to-day life, we may not feel their importance. रोजाना के जीवन में देखिए, हमारा जो पास्ट है, इनहेरिटेंस है, उससे जो हमारे वर्तमान जीवन में मूल्य आते हैं, उनका महत्व हो सकता है हम नहीं समझ पाएं. उनका महत्व तब समझ में आता है जब उनकी आवश्यकता होती है, तो वो अपना रोल बखूबी अदा करते हैं और हमारे देश को, सभी लोगों को एक
सिमेट्री प्रदान करते हैं, एक रूपता प्रदान करते हैं। क्या? हमारे बिलीफ। रोजाना के जीवन में हो सकता है वो इतने महत्वपूर्ण न लगे, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल टाइम, ऑल एग्जिस्टेंस, दे आर more and more very important than our day-to-day life. But in present time, our day-to-day life seems more important to us. ऐसा होता रहा है, हमें हमारा जो प्रेजेंट का प्रेशर है वो बड़ा भारी लगता है। हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के बारे में कम सोचते हैं या नहीं सोच पाते हैं प्रेजेंट के प्रेशर के कारण। पर ये जो बड़े दार्शनिक हैं, बड़े थिंकर हैं, इनकी ये विशेषता है कि ये पूरे समय और अस्तित्व के संदर्भ में चीज़ों का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। इसलिए राधा कृष्णन बड़े महान एजुकेशनिस्ट में से एक, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करके बताया है कि इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे एथिकल मोरल वैल्यूज का। Our capacity for survival in spite of perils from outside, matched only by our own internal fears and dissensions, is due to our persistent adherence to this spirit. क्या बता रहे हैं? देखिए कि बाहर से हमारे ऊपर एक बार नहीं बहुत बार हमले हुए, कुचक्र रचे गए, पर हमने हर कुचक्र को पार कर सरवाइव किया। एंड दिस वेरी सर्वाइवल इज द प्रूफ ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। ये जो सर्वाइवल है ये इनकी इम्पोर्टेंस का प्रतीक है। हमारे जो एथिकल मोरल वैल्यूज है, adherence to this spirit means our faith towards our values and traditions. Otherwise we could not have existed. Persistent adherence. Adherence means to adapt things in a continuous flow, continuous manner. लगातार हमने इन चीजों को अपनाया और उसका बेनिफिट हमें यही हुआ है कि हमारा अस्तित्व आज तक इंटैक्ट है, बना हुआ है। दिस इज नॉट एट ऑल एन इजी अचीवमेंट। इट लुक्स लाइक बट इज वेरी टफ to remain one, particularly in context of such a vast population and area as well. If our young men are to live more abundantly, they should enter more fully into the experience and ideals of the race. They should be inspired in their minds and hearts by the great ideas enshrined in our culture. This is a type of formula which is being suggested by Dr. S. Radhakrishnan. क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आप गौर से सुने, समझें तो आपके समझ में आ जाएगा। इफ आवर यंग मैन आर टू लिव मोर अबंडेंटली, कि हमारे जो युवा हैं उनको अगर अबंडेंटली का मतलब क्या होता है? प्रचुरता में, खूब, मोर देन रिक्वायरमेंट। अबंडेंस क्या है? कि चीजों की प्रचुरता, बड़ा स्केल। अगर हमें यहाँ पे आप समझे खुलकर जीना,
किनको? युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को। Then what is being suggested to them? They should enter more fully into the experience and ideals of the race. They should enter more fully. Again, contradiction may be there, but this is not the contradiction. Try to understand the spirit. उनको और अधिक, फुल से बेटा फिर और ज्यादा स्कोप ऐसे नहीं होता है कॉन्ट्राडिक्शन में। मोर फुली लिखा है कि एकदम से अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ इनटू द एक्सपीरियंस एंड आइडियल्स ऑफ द रेस। हमारी जो मनुष्य जाति है, प्रजाति है, उसके अनुभव हैं और आदर्श भी हैं। अनुभव और आदर्श जो मनुष्य जाति ने आज तक ग्रहण किए हैं, उनमें हमारे युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक मात्रा में एंटर होना पड़ेगा। एंटर होने का मतलब क्या है कि उन मूल्यों को आत्मसात करें। एंटर होने का मतलब सीखना, समझना, उन अनुभवों को आत्मसात करना है। मोर फुली इनटू द एक्सपीरियंस एंड आइडियल्स, अनुभव और आदर्श किसके? मनुष्य जाति के। मनुष्य जाति का जो अनुभव है उसको हमें आत्मसात करना है। बड़ा कठिन कार्य है, कहने में बड़ा आसान है। हमें हमारे पूर्वजों से, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। बड़ा सिंपल आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे समझदार कौन है। ये सबसे समझदार वाली कैटेगरी की ओर ले जाना चाह रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, कि जो दूसरों के या अपने पूर्ववर्तियों के अनुभव से सीख जाए। और एवरेज बंदा कौन है? एवरेज पर्सन जो अपने खुद के अनुभव से सीखे। और बिलो एवरेज, मजे की बात है, इसमें संख्या थोड़ी ज्यादा है। ये कौन है? जो अपने अनुभव से भी न सीखे। एक और तीनों तरीके की बात आ गई। अब राधा कृष्णन साहब उस ओर ले जाना चाह रहे हैं कि पूर्वजों के अनुभव से ही युवा पीढ़ी सीख जाए, तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। आगे जीवन में शांतिपूर्वक अचीवमेंट कर पाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो। अन्यथा अपने अनुभवों से तो सीखने का प्रयास करना ही चाहिए। सभी की एक उम्र के बाद, आप ये ध्यान में रखना, और सभी को अगर जीवित रहता है तो वो उम्र आनी होती है। ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि हमारे अनुभवों से युवा पीढ़ी क्यों नहीं सीखती। और मजे की बात ये होती है कि वो खुद भी कभी युवा होते हैं जब वो भी नहीं सीखते, जब उनको भी ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, ये तो आउटडेटेड लोग हैं, पुराने वाले, ये हमें क्या बताएंगे। जब वो उस एज में आते हैं जब उनको भी ऐसा लगता है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ विच गोज ऑन with the existence of life. They should be inspired in their minds and hearts. They refers to whom? They refers to youth, young generation. हमें क्या करना होता है? युवाओं को उनके मस्तिष्क और हृदय दोनों में अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना होता है। प्रेरित किससे करें?
by the great ideas enshrined in our culture. प्रेरणा किन से देनी है? उन महान विचारों से जो हमारी संस्कृति के अंदर लंबे समय से स्थापित हैं। उनका स्थापित होना ही उनके महान होने का प्रमाण है। इनमें से एक सेंटेंस आपको मैंने पहले भी बताया होगा, वापस रिपीट करता हूं। हमारे नेशनल एम्बलम पे लिखा हुआ होता है, सत्यमेव जयते। अब लिखे हुए होने से तो बात नहीं बनती, सभी खास तौर से युवा इसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। सत्य की सदा जय होती है, सत्य की सदा विजय होती है। सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता। ये हमारे जीवन मूल्यों में हमें एक नहीं हजारों प्रकार के उदाहरणों द्वारा सिखाया गया है। Our youth must take inspiration from these type of ideals which are in abundance, particularly in our culture. That is a type of, you can say, fate, destiny. कि भाग्य में इतना मिला है, अब उससे कुछ सीखें तो ही उसका उपयोग हो पाएगा। We would continue in next video. Thank you very much.